Hello, my dear students. Welcome back to my class, Parts of Wisdom. So today in this live session, I am going to explain you the poem Aunt Jennifer's Tigers, composed by Adrienne Rich. Adrienne Rich, who was a feminist poetess, she was born in US. So in this poem, Aunt Jennifer's Tigers, the poetess is actually telling us a male dominant society which is continuously try to suppress the feelings of a woman. Let how educated a society may be, the male members of the society always try to dominate, they try to suppress the women, their desires, their feelings. They want in every walk of life, they should only follow them, sorry, and they only want that the female members of the society only must follow them, and they actually feel like that they don't have any kind of their own desires, their own feelings. So in this poem, the poetess is actually trying to show two characters. One is Aunt Jennifer and the other one is her husband, uncle. People call them actually as aunt and uncle. So Aunt Jennifer, she is a married woman. She is actually continuously tortured by her husband. She is so much terrified before her husband that she always means to say she is always terrified. She is always under depression. She is always in the kind of feeling of suppression. She always feels like that actually she herself has a lot of desires, but she doesn't want to express them because she is so much terrified before her husband that she feels like if she tries to express her own feelings before her husband, he डरी हुई है अपने husband से. ठीक है. Now, as the poem starts, the poetess is trying to show us a panel, a kind of cloth on which Aunt Jennifer has embroidered something. So actually हमारे मन में कुछ पेन्स होते हैं जो जाते हैं और हम किसी के सामने आता है कि यदि आप उन से रहे हैं, वो जो पेन है वो अंदर ही अंदर आपको खत्म ट्रांसफर कर लेना चाहिए. Most of the time we say that if you're not able to express your feelings in your words, you should depict them through the art. Okay, every person has like drawing. In the same way, there are many kinds of art. कला के थ्रू, अपनी उस आर्ट के थ्रू अगर वो चाहे तो अपनी उन इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो भी एक्सप्रेस हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड दिस आर्ट ऑलवेज सर्वाइव. ओके, ये जो इन द फॉर्म ऑफ आर्ट पीपल द हार्ट इज एक्चुअली समवेयर इट फील्स लाइटेंड समवेयर. ओके, वो जो बोझ है जो मन में चलता रहता है वो कम हो जाता है. ठीक है. So in the same way, what Aunt Jennifer is doing in this poem, she is actually expert in embroidery. Okay, जैसे विमेन होती है आप जानते हैं कि एम्ब्रॉयडरी करती हैं, तो उन्होंने एक एक्चुअली पैनल बनाया है. इट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ जिस पर उन्होंने कुछ कढ़ाई की है. उस कढ़ाई के थ्रू यानी एक तरह से एक पेंटिंग बनाई है. उस पेंटिंग में कुछ टाइगर्स हैं. द बैकग्राउंड ऑफ द क्लॉथ इज एक्चुअली ग्रीन इन कलर. उसमें कुछ टाइगर्स हैं, कुछ ट्रीज हैं जो कि उसने जो आंट जेनिफर है उन्होंने बनाए हैं. ठीक है. सो इफ वी लुक एट द पेंटिंग डीपली, इट इज शोइंग द डिजायर्स ऑफ फ्रीडम.
of Aunt Jennifer. She is actually so much, she has been actually so much fed up with this relationship. She actually wants to get rid of it. But she is so much terrified that she is not even able to speak one single word. ओके तो उन्होंने ये जो इच्छाएं हैं अपनी इसी पेंटिंग के थ्रू डेपिक्ट की हैं. ओके सो द फर्स्ट स्टैंजा इज स्टार्टिंग दैट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द kind of her feelings. Okay, so stanza 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. Different kinds of images tigers as Aunt Jennifer's tigers. Okay, so she is saying Aunt Jennifer's tigers घूम रहे हैं. Bright topaz, denizens of a world of green. ऐसा लगता है कि जैसे कि denizens means dwellers. Okay, ब्राइट टोपैज, वर्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पर क्या, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड का कलर है ग्रीन है, सो दैट ग्रीन कलर इज एक्चुअली रिजेंबलिंग द वुड्स, द फॉरेस्ट. ओके, so she is saying that Aunt Jennifer's tigers are prancing, are jumping here and there in the jungle, and when they are jumping here and there, they are shining so brightly that they are looking like topaz. टोपेज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशियस जेम. ये प्रेशियस जेम होता है ना, जो येलो कलर का आपने देखा होगा, काफी लोगों की फिंगर में पहना हुआ होता है, जिसे हम पुखराज भी बोलते हैं. ठीक है, तो येलो कलर का होता है, तो बहुत शाइन करता है. तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो क्या है, मेटाफोरिकली बता रही हैं कि जो the poetess is resembling the color of the tiger with the color of topaz. So she is saying they are shining in the woods like the topaz, like the bright color topaz. Okay, तो जब वो यहाँ वहां जंप करते हैं तो ऐसे शाइन करते हैं जैसे कि कोई टोपैज हो. They are the denizens be dwellers of those for chivalric certainty. Now see, do not fear. They do not fear, यानी वो टाइगर जो कि आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए हैं, ओके, एम्ब्रॉयडर्ड किए गए हैं, वो डरते नहीं हैं. इनसे नहीं डरते हैं. वो मैन जो कि उसमें ये जो मैन है, जो कि ट्री के नीचे मैन खड़े हैं, उनसे वो टाइगर डरते नहीं हैं. सो इनडायरेक्टली द पोएटेस इज actually showing the desire of Aunt Jennifer. She somewhere wants from within, she doesn't want that she should not be afraid of her husband. She doesn't want that she should be afraid of her husband, but she is actually afraid. She is actually very much terrified from her husband. Okay, तो वो बोल रहे हैं, जो पोइटेस है वो बोल रहे हैं कि वो टाइगर यहाँ पर एक्चुअली आंट जेनिफर जो है वो पर्सोनिफाइड हो गई. टाइगर है वो एक्चुअली में उन आदमियों से जो ये जो टाइगर है वो उन आदमियों से जेनिफर की है अंदर ही अंदर कि मैं भी किसी से ना डरूं, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो डरती है. ठीक है, सो तो अब वो उसकी जो एक्चुअल इच्छा है जो उसे पूरा नहीं कर पा रही है, वो उसने एक्चुअली ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, उन टाइगर्स में. ओके, सो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे आर नॉट गेटिंग अफ्रेड ऑफ द मैन हु आर स्टैंडिंग below the trees, under the trees. They pace in sleep, chivalric certainty. वो डरते नहीं हैं बल्कि पूरी बहादुरी के साथ, with full elegance. Sleek means elegance. Very elegantly they are in a very, and chivalric means with full confidence, bravely. Okay, so Aunt Jennifer's tigers are prancing here and there, very brave below the tree. Finger find even the needle hard to pull. That terrified aunt, she is so much terrified with her husband that even able to move a little bit. Whenever
even not he is not actually standing before her, only the thought of her husband gets her terrified from within. Even her husband's thought, can you get it? Even his thought, her husband's thought feels means it gives her so much fear from within that she is not even able to move. Okay, so the poetess is saying, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Whenever Aunt Jennifer tries to embroider her painting, तो उस समय क्या हाथ में जिसमें कि वो आइवरी नीडल, आइवरी नीडल क्या होता है, आइवरी हाथी दांत को एक्चुअली बोलते हैं। तो जो नीडल होती है, जिसे आप कह सकते हो इतनी लाइट होती है, इतनी हल्की होती है, तो वो इतनी हल्की सी जो वो नीडल है, वो भी उसको इतनी ज्यादा हैवी लगती है, इतनी ज्यादा भारी लगती है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके यानी कि उसके दिमाग में एक्चुअली एकदम से थॉट आई है अपने हस्बैंड की। ओके, तो जो कि थर्ड लाइन है उस पर ध्यान दीजिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। एक्चुअली क्या है, जब वो इसी तरह से जो लोग होते हैं उनके जो रिंग होती है, ठीक है, तो वो जो रिंग होती है वो एक्चुअली सिंबलाइज करती है उनकी मैरिड लाइफ की। ठीक है, तो ये वेडिंग रिंग है जो कि शादी के दिन एक्चुअली अंकल ने उनको पहनाई थी। ठीक है, तो जैसे ही वो एक्चुअली ड्राइंग करती हैं, कढ़ाई करती हैं, तो उनकी जो नजर है वो उनकी अंगूठी पर पड़ जाती है, और जैसे ही उनकी अंगूठी पर उनकी नजर पड़ जाती है, अब यहाँ पर देखिए कि कितना मतलब कि कहना चाहिए, एक बहुत ही दर्दनाक हम कंडीशन कह सकते हैं। द थिंग्स दैट एक्चुअली शुड रिमाइंड द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप is actually reminding her the fear. Okay, that terrified things means the terror. She is actually reminding the same terror that her husband actually tries to give her again and again. तो उस अंगूठी को देख करके अचानक से उनको अपने हस्बैंड की याद आती है, और उनकी याद आते ही उनका वो जो डरावना जो रूप है वो उनको याद आता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो फिंगर्स है वो क्या करने लगती हैं, वो फ्लैटरिंग यानी कि कांपने लगती हैं। ठीक है, तो उस कहना चाहिए वो जो फिंगर्स हैं, ओके, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल, यानी कि जैसे ही उनके दिमाग में अपने हस्बैंड की थॉट आती है, तो अचानक से उनके जो हाथ हैं वो क्या करते होते हैं, कांपने लगते हैं, उस वूल के अंदर फ्लटर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और वो जो नीडल भी उनको इतनी ज्यादा भारी लग रही है कि उनके जो हैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवी महसूस होते हैं उनको। क्यों क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि वो छोटी सी रिंग फिंगर जो है उस जिसमें कि उनको वो रिंग, ठीक है, यानी वो अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा टॉर्चर्ड हैं कि उनका जो भार है, उस रिश्ते का जो भार है वो उनसे सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, और उनकी याद आते ही अचानक से क्या होता है कि उनकी जो उंगलियां हैं वो कप कपाने लगती हैं। Okay, so here in this stanza we can notice that how terrified Aunt Jennifer is, कि उनकी जो हल्की सी वो जो सुई है उसको भी वो खींच नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि ऐसा लगता है उनकी सिर्फ जो थॉट है, उनके हस्बैंड की थॉट जो है वो उनको पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश कर देती है। ओके, when aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with audience she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud, unafraid. Now, in this concluding stanza, the the poetess is actually showing the tragedy of the fate of a woman, that the audience of women's life, the examinations of women's life, the test of women's life never never get never gets ended. तो क्या होता है कि जैसे कि डाइट, हर ऑडियंस
will never be finished. It is the tragedy of every woman's life. यानी कि जब तक वो जिंदा रहती है हर पल उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. ऑडियंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे अग्नि परीक्षा. ठीक है. सो शी हैज टू गिव डिफरेंट काइंड, वी कैन से. ओके. तो जब तक वो जिंदा रहती है दिन हर पल विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. लेकिन इतना ही नहीं, ये जो पुरुष प्रधान जो समाज है, सिर्फ इतना ही नहीं कि जब तक वो जिंदा रहती है तब तक वो उसके साथ ऐसा करता है, उसकी मृत्यु के बाद भी, उसकी जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उसकी जो जब आंट की डेथ हो जाएगी उसके ये जो कपाते हाथ हैं वो शांत हो जाएंगे. रिंग्ड विथ ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. उसके हाथ में जो रिंग होगी वो इस बात को दर्शाएगी कि शी हैज बीन वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस सोसाइटी. ओके. तो वो सारे जो ऑडियंस, वो सारी जो परीक्षाएं हैं जो इस समाज ने उसको दी हैं उसमें वो एक्सपर्ट, यानी उसकी मृत्यु के बाद भी वो इस बात को दर्शा देगी कि आई हैव बीन वेरी मच एक्सपर्ट इन गिविंग माय एग्जामिनेशंस. और इतना ही नहीं, उसके जो एग्जाम है उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होंगे. यानी उसकी मृत्यु के बाद भी ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, उस पर क्या है, प्रश्न उठाना बंद नहीं करेगी. उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी जो डेथ है उस पर प्रश्न उठाए जाएंगे. और उसकी जो कहना चाहिए कि वो सारे एग्जामिनेशन जिसपे देने में वो एक्सपर्ट हो चुकी है, वो सारे एग्जामिनेशन उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होंगे. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लेकिन वो टाइगर्स जो कि एक्चुअली उसकी स्वतंत्रता के सिंबल है, स्वतंत्रता की निशानी है, वो ऐसे ही उस पर बने रहेंगे. They will keep on surviving on that panel. They will keep on moving proudly on that panel. और वो चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके उसकी इच्छाओं को दर्शाएंगे, उसकी फ्रीडम को दर्शाएंगे कि किस तरह से हर दिन वो अपनी हर इच्छा को मारती थी, हर इच्छा को फिनिश करती थी अंदर ही अंदर. और इस प्रकार से अपनी विभिन्न इच्छाओं को समाप्त करते करते एक दिन वो खुद समाप्त हो गई. लेकिन उसकी जो परीक्षाएं हैं, उसकी जो अग्नि परीक्षाएं हैं, वो कभी भी खत्म नहीं हुई. So this is the explanation of the poem and Jennifer's Tigers. The complete poem is actually symbolic poem. So in my next session, I will explain you how symbolically the poem is presenting before us, how the author has actually presented very beautifully. Actually, she is presenting with different kinds of symbols, as you can notice, tigers, green trees. Okay, then that ring. All these things are actually showing the poem very beautiful and depicting the poem actually completely symbolic. Okay, so इस हर symbolic word के पीछे एक meaning है. Okay, so in my next session I will explain you different symbols that have been actually used by the poetess and Adrienne Rich. Okay, तो किस तरह से उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हुए इस पोएम को लिखा है, उन सिंबल्स को मैं नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. होप you liked the explanation, understood the explanation. Still, if you have any